Hello everyone, this is Nisha Sharma and my today's video is for the students of 6th standard where I'll be teaching chapter 6 from grammar which the name of the chapter is tenses. So students, you have already revised, you have learned before what means like how many tenses are there. There are three tenses in English. There are basically three tenses: present, past, and future. And now these three tenses are also divided into three categories. Here it is mentioned three categories. So today we'll discuss about this. Simple present tense में like simple present tense, simple present continuous tense, and present perfect tense. And in past you can see simple past tense and past continuous and the perfect. Then in future also you can see the same simple, continuous and perfect. So we'll discuss it one by one and we'll let you know exactly the use and the rules of it. But before that I would like to tell you some few more things about tense. टेंस में जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो वन मोर थिंग शुड बी क्लियर विच इज वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो हमें कौन से फॉर्म को किस टेंस में यूज़ करना है, वेदर इट्स सिंपल और कंटिन्यूस और परफेक्ट, इन पास्ट और फ्यूचर और इन प्रेजेंट. दैट इज़ very much important. And if once you'll have that knowledge, once you'll have you'll come to know about the rules and you'll have that thing in which you can make or you can frame sentences, whether it's in present tense or past or future, then it will become quite easier for you all. So we'll start with the class. First, students, you'll get this in PDF form also, but also I'm showing you it over here. See, I have made a table over here. In your book, these three categories are not mentioned, which is present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. But also I have mentioned it over here. So once you'll get the notes in PDF form, you'll be able to write it down, copy it down. So see, you can see here that three basic tenses, present, past and futures are given over here. Here I have written three sentences. One is in present form, the second one is in past, and the third one is in future. So I write a letter, I wrote a letter, I shall write a letter. First one you can see write as a first form of verb, wrote is again a second form, and I shall, use of shall or will, we add shall or will in future tense, and then after I have I've used the first form again along with the object. So before I proceed, you can also see here that all underlined words above sentences are the verbs. Now see, underline, I have already underlined it to make it more clear to you that these are verb in the sentence, and which forms are they, you'll come to know. See over here, in this table I have made the subject plus verb ka first form plus object. Means in whenever you are whenever we talk about simple present tense, so जो हमारा sentence होता है, जो frame हम करते हैं sentence, उसमें हम हमेशा sentence subject के साथ में verb का first form और उसके बाद object को add करते हैं. जैसे I write a letter, so subject verb का first form and then object है. Here you can see past tense में हम subject plus verb का second form and then object use करते हैं. You can see here I wrote a letter, so first subject and then second form and again object. Here you can see simple future tense, that means subject plus use of will or shall. मैं आपको यहाँ आगे चैप्टर में समझाऊंगी when I'll डिफाइन. जब मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करूंगी उस टाइम मैं आपको विल और शेल का यूज़ भी बताऊंगी वहाँ पे. तो विल और शेल के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ. सो हियर यू कैन सी आई शेल का यूज़ किया मैंने, राइट लिखा है मैंने, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट के साथ. सो लेट्स कम टू द
टॉपिक जो हमारा बेसिक हमारा जो टॉपिक है, ये मेरे टेंस के चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है टेंस का, जिसमें कि मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस के सारे जो 3 कैटेगरीज हैं उसको डिफाइन करूंगी, जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, नाउ यू फर्स्ट यू विल सी दिस। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सो दैट यू डोंट हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन टू सी दैट टेबल विच आई हैव मेड। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले मैंने सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। तो आई प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, राम गोज टू मार्केट, शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहे होंगे, जहाँ पे मैंने एस का यूज किया है, एस का यूज किया है, ऐसा क्यों है ये भी मैंने यहाँ पे नोट बना के डाला है। नाउ सी यू कैन सी हियर in sentence 3, 4 and 5, these 3 sentences I have used s और es, है ना। इसमें मैंने s और es का यूज दिखाया है आपको बिकॉज s और es is affixed to the verb, बिकॉज जो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ वो हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम यहाँ पे s और es का यूज करें। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट इफ द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट इज सिंगुलर एंड ऑल्सो इफ इट इज थर्ड पर्सन, then we use s or es in that particular verb. So always remember this. I have made this note to make it more easier and to understand it in a more easy way. So that is why I have made this note for you. Also ये हमारा simple present tense है। So I made it very clear to you, but also if you have any doubt in this part, so you can ask me when we'll have online class. Next I'll come to present continuous tense. अब present continuous tense में भी मैंने यहाँ पे आपको रूल दिखा दिया है, लिख दिया है यहाँ पे कि s सब्जेक्ट प्लस is, am, are प्लस verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें क्या है बच्चों, आप यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर राइटिंग अ लेसन, ही इज रीडिंग अ बुक। नाउ यू कैन सी हियर कि आई के साथ मैंने एम को यूज किया है, शी के साथ इज को, यू के साथ आर को, वी के साथ आर एंड ही के साथ इज को। हम सब लोग को पता है, मैंने कि आपको पहले भी वर्ब के चैप्टर में ये क्लियर किया था कि इज, एम, आर जो हमारा है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और हमेशा ये चीज को आपको याद रखना है कि जो हमारा एम है वो हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। इट इज सिंगुलर बट ऑल्सो हम इसको एम को जो है हम यूज करेंगे सिर्फ आई के साथ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा और आप लोगों के लिए ये प्रिपेयर किया है, जिसमें कि मैंने एक साइड में सब्जेक्ट और एक तरफ में ऑक्सिलरी वर्ब को दिखाया है कि कहाँ पे हम कैसे इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ हम हमेशा एम को यूज करेंगे। यू के साथ वी, दे, और अगर आपका जो अगर कोई प्लॉरल नाउन है तो उसके साथ आप आर का यूज करेंगे। यू विल यूज आर विथ यू, वी, दे और एनी प्लॉरल नाउन, कोई भी प्लॉरल नाउन है तो प्लॉरल के साथ हम आर का यूज करते हैं। ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है और वो पर्सन सिंगुलर है या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो हम इज का यूज करते हैं, एक्सेप्ट आई सिंगुलर है बट हम आई को हमेशा एम के साथ यूज करते हैं। दिस इज टू बी रिमेम्बर, दिस पॉइंट टू बी रिमेम्बर, दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेम्बर। यू ऑलवेज रिमेम्बर दिस। I made it, I have written this just to make it more and more clear to you all. I hope you will get it in a more easier way जो है, इसी वजह से मैंने इसको I made it quite clear for you all. So अब next हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने यहाँ पे देखो, यू कैन सी दैट आई हैव रिटन सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव को ऐड करते हैं और उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ऑब्जेक्ट के
Sat, now he has written a letter, he has eaten all the apples, it has just struck 7, we have just arrived, I have completed my work. अब इस सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सारे सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे लिखा हुआ है. मतलब अब यहाँ पे मैंने एक नोट भी डाला है, हैज इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, नेम एंड एनी सिंगुलर नाउन. जो हैज है उसका यूज हम हमेशा ही, शी, इट के साथ करते हैं, या फिर कोई नाम हो जो या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का. हम हैव का यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो हम उसको हमेशा उसमें हम हैव का यूज करते हैं. प्लीज रिमेम्बर दिस. मैंने ये नोट हर जगह पे इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझ जाएं. अब हम बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसको इलेबोरेट करना चाहूंगी. प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, प्रेजेंट में जो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस है और परफेक्ट है, ये हम तीनों को थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूंगी जिससे आपको और अच्छे से थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब ही होता है कि हम मतलब अभी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो भी है. तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक टाइम का जिक्र नहीं किया जाता है. ये मीन्स लाइक पर ये आज भी होती है ना. लाइक जैसे कि अगर मैं इसमें व्हाट हैपन्स एक्चुअली कि लाइक नाउ, या फिर दिस आवर, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, लाइक इट कंटेंट, इसमें क्या होता है कि हमारी जो हैबिट्स है या रूटीन है या फिर कोई फैक्ट है, जैसे अगर मैं सपोज बोलूं कि द अर्थ इज राउंड, तो ये क्या है, फैक्ट है कि पृथ्वी गोल है. ठीक है. आई लाइक इफ आई से कि आई ईट पिज्जा, तो ये मेरी हैबिट है एक तरह से कि मैं पिज्जा खाती हूँ. ठीक है. चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, सो ये क्या है, उनकी रूटीन में है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, है ना. लाइक इफ आई से दैट ममा गोज टू ऑफिस, तो ममा क्या है, ममा का रूटीन है, वो रोज ऑफिस जाती हैं, सो इट्स अ डेली रूटीन. तो ये हो जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. आप एक और तरीके से पहचान सकते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि वो सेंटेंस लास्ट में जाता हूं या ता हूं या ती हूं से एंड होता है, तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब अगर सपोज कि मैंने आपको ये भी बताया इसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है कि जैसे इसमें अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि वर्ब में हम एस और ई एस को यूज करेंगे. ठीक है. इस चीज को याद रखना है. अब हम आएंगे लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस ज्यादातर कैसे एंड होते हैं, रहा हूं पे या रही हूं पे या रहे हैं, तो इसमें एंड होता है. जैसे तुम ऑफिस जा रहे हो, अगर मैं ये चीज को बोल दूं कि तुम ऑफिस जा रहे हो, तो इससे पता चल रहा है आपको कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है, ये कुछ साइन है, ये कुछ ट्रिक हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है, टेंस की कौन सी कैटेगरी है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, या फिर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो जो वर्ब का जो फॉर्म है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो मैंने आपको इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं, आर, इज, एम, इसका यूज आप उस जगह पे जो मैंने आपको नोट नीचे लिखवाया है, उस नोट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे आपको कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है. अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आती हूँ. तो परफेक्ट में क्या होता है कि ये जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें जैसे मैं वीडियो देख चुकी हूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो आई हैव सीन वीडियो, तो इसमें क्या है कि हैज आएगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर है. ठीक है. उसके अलावा सब जगह हम हैव का यूज करेंगे. ये चीज
आपको हमेशा याद रखनी है। ये मैंने इसको ऑलरेडी नोट्स में क्लियर कर दिया है, बट आई हैव जस्ट मेड इट मोर क्लियर टू यू, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट, जिससे कि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, माय टुडेज वीडियो वाज बेस्ड ऑन प्रेजेंट, जिसके मैंने 3 कैटेगरीज जो इसके हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है। अब मेरा जो सेकंड पार्ट है टेंस का, उसमें आई विल एक्सप्लेन यू पास्ट, एंड पास्ट के ये तीनों जो फॉर्म है, ये तीनों को मैं क्लियर करूंगी। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।